Urdu is such a beautiful language, so if you're using it to express our happiness, it's absolutely fine. We should be more tolerant. आई थिंक कि वर्ड्स को ऐसे कंट्रोवर्शियल करना इज नॉट एट ऑल लाइक इम्पोर्टेंट ही नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है. दे आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म, दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड देन देयर आर दीज एलिमेंट्स. We have much more bigger issues in the country to address than just talking about some words that were used in some campaign. पहली हुई थी फैब इंडिया कंट्रोवर्सी, #boycott फैब इंडिया. फिर हुई जोमैटो कंट्रोवर्सी, #reject Zomato. जहां एक ब्रांड को क्रिटिसाइज किया गया फॉर यूजिंग एन उर्दू वर्ड इन द लेटेस्ट दिवाली कैंपेन विच वाज जश्न रिवाज, जहां एक तरफ फैब इंडिया का एम था टू सेलिब्रेट इंडिया एंड नॉट हैम्पर द सेंटिमेंट्स, नॉट टारगेट एनी कल्चर और अ ग्रुप. वहीं जोमैटो वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल्ड हिंदी द नेशनल लैंग्वेज एंड इंसल्टेड द कस्टमर बाय सेइंग कि आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए एंड यू वोंट गेट अ रिफंड कॉज ऑफ दैट. जहां दोनों ही कंट्रोवर्सीज अलग हैं, बट कहीं ना कहीं इस इमर्जेंस के एक कॉज जो मुझे क्लियरली दिख रहा है वो है सेंटिमेंट्स. यस, यू हर्ड इट राइट. वेयर पीपल स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स देयर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, व्हिच आई एम श्योर होना भी चाहिए फॉर श्योर, बट टू दिस एक्सटेंट इज इट जस्टिफाइड? सो इंटरनेट पे तो हमने लोगों के रिएक्शन देख लिए हैं. लेट्स टेक द कॉमन मैन्स व्यू ऑन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी. उनके हिसाब से फैब इंडिया एंड जोमैटो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? लेट्स फाइंड आउट. So, what's your take on the latest controversy? Firstly, what's your name? हर्षा. Yours? Akshita. Yours? इज्जिया. पहले आप बताओगे. आई थिंक कि वर्ड्स को ऐसे कंट्रोवर्शियल करना इज नॉट एट ऑल लाइक इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है. और लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग पॉलिसी है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई इशू है ही नहीं. Exactly. Again, I agree with her. This is we have much more bigger issues in the country to address than just talking about some words that were used in some campaign, and it's irrelevant. I mean, I don't care. I use words from all languages every day in my life. I don't even realize what I'm using. So it's a very stupid thing to be talking about. We have real issues. Why aren't we talking about the GDP? Why aren't we talking about unemployment? Why aren't we talking about the farmers' protest? We have other things to talk about. This is just a stupid thing which I think we are trying to just distract ourselves from the real issues of the country. It's not relevant. किसी भी एक टैगलाइन पे assumptions अपनी बना लेते हैं कुछ लोग बैठ के कि मतलब घर पे बैठे हैं, assumptions बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, हैशटैग डाल रहे हैं. आई डोंट थिंक दिस इज एट ऑल लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है ये We are सब. not as tolerant nowadays as we used to be. India is known for unity and diversity. It's stupid. Don't you think the sentiments in both the cases are going overboard? Yes, of course we are going overboard. I mean, we have become so intolerant कि कोई हमारे बात अगर कुछ अलग बोल देता है, so then we react so badly that it becomes such a huge issue. It's trending. Point fingers. Very easy on social media to just point and put a comment there and just leave it there, and then people will just come and you are just under a disguise and you can't just say anything and people will not even question you. That's not the way. This is more prevalent in this social media age. When we didn't have social media, this was not happening because now you can hide behind a screen. It can be anybody. You can just hide behind a screen and write anything and nobody is going to question you. We don't even know how many genuine people are there. It could be just trolls. And there are people amongst us who are actually doing it. So yeah. Anonymously and unknown IDs बना के. I don't know personally. I know several people. I don't know anyone from my generation, from their generation. We have a huge generation gap. Who would think that's this way? So I don't know who these people are who are creating a controversy. In fact, I am from the advertising industry and I am seeing how brands are trying to be woke. They want to talk about what people are trying to say, and they are just a platform. They are just trying to bring people together, and then there are these elements that are just trying to question them and then just bring them down basically. They just have their own motivation that हाँ मेरे को कुछ controversy करना है just for some little limelight. I mean, you see that Myntra controversy. The logo has been there for ages, and now suddenly some woman is seeing that in some other way. I mean, that doesn't even make sense. So like they woke up on the wrong side of the bed and they decided, okay, आज ये करते हैं. And it was similar for the Tanishq ad. I mean, I loved the Tanishq ad. It was Exactly. such a lovely ad, such a lovely sentiment, and they made such a huge issue about it. It was such a lovely thought. I mean, I can't even appreciate how to
I appreciate the copywriters. I appreciate the people who made that kind of ad, because it's such a lovely thing, and they just made mountain out of a molehill. There was nothing there. Even for Fab India, when they said that they're celebrating India, so that's a good thing. So It's a very good thing. I mean, And it's a Tanish, nice sentiment. like an example of Tanish itself, they are a brand that has always tried to, break the norm, and they have been trying to do such kind of communication, and they have always got the backlash. So I understand if Fab India in fact has been my client as well, and I know what kind of thinking they have had. They try to promote something like modern girls, what modern women are thinking, and I don't think there's any point in questioning a word that they have used. Come on, dude. I mean, it's India. You have so many languages. We have more than 300 languages. You can't We have just thousands say that. of languages. Yeah. We don't have time for. I mean, in this lifestyle that we have, do we really have time to talk about such stupid things? I mean, we have real issues in this country. People don't have money to eat. So why aren't we addressing those things? This is just a stupid thing that we that privileged people who are sitting behind screens are just talking about it. So it's just we need to talk about the real issues of the country. We are way behind the world in every phase of life right now. So that is more important. So do we really have the time to talk about these issues? So firstly, thank you for connecting with us. I wanted your opinion on this particular topic. Which topic, ma'am, you are talking about? कि जोमेटो की कंट्रोवर्सी हो रही है, फैब इंडिया की कंट्रोवर्सी है, दोनों में आई थिंक सेंटिमेंट्स इन द एंड बेस है. तो पहले तो आप मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है, गलत है, सही है, कौन गलत है? मैम, अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो जो अपना ऑपरेशंस कर रहा है वो इंडिया में कर रहा है, राइट. और एक माना गया कि इंडिया एक कंट्री है, बट एक 7 अलग उसमें अलग स्टेट्स आते हैं, तो हर स्टेट का एक अलग सेंटिमेंट होता है. वैसे तो ऑल्दो हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, राइट, बट अगर एक जोमेटो किसी पर्टिकुलर स्टेट की, ऐसे तमिल की वहाँ पे चल रही है कि आप उसी लैंग्वेज में बोलो, तभी हम आपके ऑर्डर्स सुनेंगे, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे. इस केस में अगर जोमेटो ऐसा करे तो डेफिनेटली वो सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं. अब मैं हिंदी बोलता हूँ, राइट, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ. अब मैं तमिल में आके बोलता हूँ, वो मुझसे बोले कि या तो आप हिंदी तमिल में ही दो, आई डोंट नो तमिल, तो मेरे को एक इन्फियरिटी शो हो रही है. ऑल्दो आई एम एन इंडियन, राइट, तो आपको हिंदी में करना चाहिए, राइट. आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप तमिल में नहीं बोल रहे तो हम आपकी कंप्लेंट ही नहीं रख सकेंगे. यू आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, राइट, तो आपको सारी लैंग्वेजेस और सब अपना जितने भी यहाँ पे क्या नाम है, जितने भी स्टेट्स या जिन लोगों को भी आप गेस्ट को अपने साथ, आप जोमेटो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट. आज के टाइम में अगर ऑनलाइन उनकी बात करें तो आई थिंक सबसे ऊपर जोमेटो भी है. स्विगी इज़ नॉट कहीं भी आसपास है नहीं. तो जोमेटो ने अगर ऐसा कुछ किया है कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि आप उसी लैंग्वेज में करो, नहीं तो हम आपका ऑर्डर ही नहीं लेंगे, तो दिस इज़ मेरे हिसाब से तो दिस इज़ रॉन्ग. जोमेटो को इस चीज़ के लिए अपलॉजीज देनी चाहिए और ऐसा नहीं करना. They have given an apology. हर्ट्स होते हैं डेफिनेटली, मैं भी उसकी अगर होता है तो हर्ट्स होते हैं मेरे भी. और फैब इंडिया कंट्रोवर्सी सी मैम, फैब इंडिया ने जो आप बता रहे हो कि जश्न है, क्या वो रिवाज, इसमें एक दिवाली जो है वो पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, राइट. तो आप हिंदू और मुस्लिम को, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ स्टार्टिंग से. हिंदू मुस्लिम वी ऑल आर टुगेदर, वी आर इंडियन सबसे पहले, राइट. और जो दिवाली है या होली है, ये एक पूरा ईयर में एक बार आता है. इवन मेरे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके साथ दिवाली आ रहे हैं वो हमारे साथ दीपावली सेलिब्रेट कर देंगे. तो जश्न रिवाज उसने अगर ऐसा यूज़ करा तो कोई बुरी नहीं है. मेरा जो उसमें लग रहा है उनकी इंटेंशन ये रही होगी, है दिवाली एक हिंदुओं का फेस्टिवल है, उन्होंने जो मॉडर्न मुस्लिम की क्या बोलते हैं आप इन्हें, वोकैबलरी जो ये डाली है इन्होंने उर्दू रिवाज, ये कनेक्शन के लिए ही आई होप इन्होंने ऐसे किया होगा कि वी ऑल आर इंडियंस, लेट्स सेलिब्रेट दिवाली. That's what they've said, कि they're celebrating India rather than a different. Exactly. Celebrating Diwali, let's celebrate it together. Apart from you are Hindu, you are Muslim, you are Christian, leave it beyond. दिस इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ही है हमारा एक तरीके से, दिवाली देखा जाए तो लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर. इसमें आई डोंट थिंक कि इसने कुछ ऐसा गलत किया है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है. बट हाँ, जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हर्ट होती हैं. आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि हम आपकी कंप्लेंट्स ही नहीं लेंगे अगर आप उस लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना चाहिए. लैंग्वेज इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, डोंट मेक इट अ बैरियर, राइट. तो है तो हमारा इंग्लिश हिंदी आप कर सकते हो, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, राइट. तो अगर जोमेटो ने ऐसा किया है तो आई थिंक उसको अपलॉजीज करनी चाहिए. बट जश ने
रिवाज रिवाज वाला आई डोंट थिंक कि उन्होंने कुछ गलत किया। मेरी इंटेंशन तो यही है कि हिंदू और मुस्लिम्स मतलब लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर, ऐसी शायद उनकी इंटेंशन रही होगी। तो डू यू एग्री कि जैसे दोनों ही केसेस में द सेंटिमेंट्स वाज द बेस, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि वो एक होते हैं कल्चर की तरफ सेंटिमेंट्स थे, एक रिलीजन की तरफ, एक तरफ लैंग्वेज के। सो या सेंटिमेंट्स इज द बेस। एग्री इज द बेस, वेरी ट्रू मैम, बट अकॉर्डिंग टू मी ये पर्टिकुलर सामने वाले पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। जैसे आपने मेरे से कहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब बहुत से लोग होते हैं कि भाई मतलब मैं किसी को पर्टिकुलर कास्ट पे किसी को नहीं कर रहा हूँ, सबको अपना वो एक करना चाहिए। बट दिवाली, होली, दीज आर फेस्टिवल्स हैं, साथ में सेलिब्रेट को, टेक इट इन अ पॉजिटिव। किसी की ऐसी आई डोंट थिंक किसी की ऐसी फैब इंडिया की इंटेंशन रही होगी कि इनको हिंदुओं को आप, आई डोंट थिंक कि फैब इंडिया बहुत बड़ी ब्रांड है, फैब इंडिया भी, वो दिवाली फेस्ट सेलिब्रेट कर रही है, उसने ये वर्ड यूज़ करा है, तो डेफिनेटली उसकी इंटेंशन ऐसी तो है नहीं कि मैं हिंदूज़ को जो है इन्फियर शो कर रहा हूँ बाई यूजिंग दिस वर्ड। अब जिन लोगों की अगर एक मानसिकता आप लोगों ने बना रखी है एक चार दीवारी के कमरे में कि बस हम तो यही है, ये कर कैसे दिया, तो दिस इज़ बैड। आपको एक ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, लाइक कि ठीक है लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर। एरो माइंडसेट को खत्म करो। एग्जैक्टली माइंडसेट को खत्म करो, और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप सामने वाली चीज़ को कैसे ग्रैप्स करो, राइट। थोड़ा अपनी अपब्रिंगिंग्स भी, मैं देखो किसी को पर्टिकुलर नहीं बोलूँगा, अपब्रिंग भी डिवाइड करती हैं काफ़ी। आज भी इंडिया में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये कास्ट सिस्टम होता है, राइट। तो मेरा तो ये रहेगा कि कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा अवॉइड करके बी एन इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, सबके अलग होते हैं, ठीक है। हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं ईद, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं करते, हम लोग दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। इवन मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं मुस्लिम्स हैं, तो ये ऑल्सो सेलिब्रेट दिवाली विद अस। तो हमारा तो यही रहता है मैम, मेरी इंटेंशन भी यही है कि बी एन इंडियन, ये कास्ट सिस्टम थोड़ा अलग करो और एक ब्रॉड माइंडेड अपना वो लाना चाहिए, राइट। थैंक यू। सो इट्स टाइम कि हम इससे आगे बढ़े एंड टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग। थैंक यू। Firstly, what's your name? Kriti. Yeah, so can you talk about this topic? Okay, so in my opinion, festival is something very positive. It basically unites all of us, and we should celebrate it with the unity as well. You know, Urdu is such a beautiful language. So if you're using it to express our happiness, it's absolutely fine. We should be more tolerant, and I think ye Muslim and all of these usage has been long debated, and I think we should, as a new generation, I think we should be more tolerant and we should overcome those inhibitions that we have carried on to our generation. Fab India has also said that they're celebrating India, so that's like an added point, right? Exactly. We are a diverse nation. We celebrate Christmas. We celebrate almost everything. We should not restrict ourselves that okay we can only have to use like a certain language. I think India recognizes 22 languages, and we have the right to use anything which makes our product or anything beautiful. But then don't you think there are also people on the internet behind the screens who are criticizing this? There are a group of people, so... See, of course, there are criticism and there are positives to everything, You cannot deny that, okay, that group section of people have an opinion, they have expressed it, cool. But if they abuse or if they degrade the other community or they degrade the whole using the Urdu language, I think that's a little useless and stupid. Of course. Okay, thank you. हिंद, भारत, इंडिया, पॉपुलेशन 138 करोड़, जहाँ 138 करोड़ लोग, 138 करोड़ ओपिनियंस। फैब इंडिया से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो, तनिष्क की कंट्रोवर्सी हो, मिंत्रा की या जोमेटो की, सम थिंग्स आर जस्टिफाइड, वेल सम आरंट। जश्न रिवाज हो या झिलमिल दिवाली, डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? Aren't there more relevant and specific things to talk about? Well, shouldn't every language be respected? Hindi or Tamil? What do you think? So that was all for today's segment. This is Resham, DNP India.